Hello, my dear students of class 9th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. So let us continue with this chapter, the first chapter of your physics. Today is the lecture number 5 of this chapter, measurements and experimentation. So we have already done lecture 1, lecture 2, lecture 3 and lecture 4 of this chapter, and we have covered a lot of topics already from this chapter. We will continue from where we stopped in the previous lecture. So today is lecture number 5. Let me tell you people that we have already started with chemistry course also for class 9th. Okay, there is a separate playlist of the first chapter of your chemistry, which is language of chemistry. You can go to the playlist section and search for the appropriate playlist. Okay, and get the lectures in proper sequence. Okay, so I hope you have watched the previous lectures and then you will proceed with this lecture. Today is lecture number 5 of this chapter. So get ready with your notebook. You have to take down the notes, whatever we discuss. As I have already told you, that you have to maintain the record of the notes properly so that during your examination you can use these notes for your preparation. These notes are wholesome tool for your preparation for examination. Iske alawa, you don't have to look for other resources. These notes and questions, whatever we would be discussing in these videos, would be super useful tool and self sufficient tools for your preparation for your examination. All right, so without wasting any more time, let us start today's lecture. So lecture number 5. So what do we have to study today in the first topic? Some examples of derived units. Okay, so previously in the previous lectures we had completed the topic. If I would take you to the previous lecture, we had discussed about fundamental units. Okay, and also we had discussed about derived units. Okay, this we have done in the previous lectures. You must have watched them. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि fundamental units are such units which are independent of any other unit. All right, they do not depend on any other unit. So we have discussed the examples of fundamental quantities and units also. Length, whose SI unit is meter. Mass, whose SI unit is kilogram. Time, whose SI unit is second. Temperature, whose SI unit is Kelvin. Luminous intensity, whose SI unit is candela. Electric current, whose SI unit is ampere. Amount of substance, whose SI unit is mole. Angle, whose SI unit is radian. Solid angle, whose SI unit is सारे क्वांटिटीज को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उसके यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. राइट, अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिराइव्ड यूनिट्स. These are those units which depend on the fundamental units. That means which can be expressed in terms of fundamental units. Derived units वैसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. मतलब डिराइव्ड यूनिट्स को लिखने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेते हैं. अब देखो तुम्हें समझ में आएगा. जैसे अगर मैंने एग्जांपल समझाया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि आज हम अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं. Right, so we need to have a recap of what we did in the previous lectures to understand today's topic, and that is why I am making a recap of the topics that we have already done. तो derived units का example एक है एरिया. बहुत इजी एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा. एरिया का जो एग्जाम्पल, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, बताओ? यूनिट ऑफ, या फिर एसआई यूनिट ही बोले, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. सबको पता है मीटर स्क्वायर होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. लेकिन ये मीटर जो है वो तो फंडामेंटल यूनिट है. पीछे देखो, लेंथ का यूनिट होता है मीटर. तो तुमने एरिया का जो यूनिट बनाया विच इज मीटर स्क्वायर, ये तुमने फंडामेंटल यूनिट मीटर को यूज करके बनाया है. दैट मीन्स यूनिट ऑफ एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट because unit of area is made up of मीटर इंटू मीटर. मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार मीटर को तुमने मल्टीप्लाई किया, मीटर इंटू मीटर. ये मीटर इंटू मीटर गेव यू मीटर स्क्वायर. मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट है ना, लेंथ का यूनिट है मीटर. लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ इंटू लेंथ, जब तुमने लेंथ का यूनिट को दो बार मल्टीप्लाई किया तुम्हें एरिया का मिला. तो तुमने एरिया का यूनिट तुम्हें पाने के लिए तुम्हें फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेना पड़ा, नहीं तो तुम एरिया का यूनिट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. दैट इज वाई एरिया का यूनिट इज अ डिराइव्ड यूनिट.
दिस इज रिटन ओवर हियर। इस लाइन को समझो, डेफिनेशन कितना सिंपल है कि डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। एरिया का यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड किया, और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हमने एरिया का यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें वो भी वैसा ही है, बिल्कुल डिराइव्ड यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का हमें यूनिट मिलेगा। दैट इज वाई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट। अगर हम बात करें एस आई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड व्हाट इज इट? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है ना स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे -1 पावर में लिखने का मतलब ही है कि मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को डिवाइडेड बाय सेकेंड को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। ये दोनों चीजें सेम है। तो बेसिकली मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ जो कि फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, वो भी फंडामेंटल यूनिट है। मीटर एंड सेकेंड दोनों फंडामेंटल यूनिट है। पीछे देखो, टाइम का सेकेंड होता है एंड लेंथ का मीटर होता है, और ये मीटर और ये सेकेंड दोनों फंडामेंटल यूनिट्स है। और मीटर और सेकेंड कोई भी दूसरे यूनिट पे वो डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन इसी मीटर और सेकेंड का यूज करके हमने स्पीड का यूनिट बनाया, यानी स्पीड का यूनिट, द यूनिट ऑफ स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स मीटर एंड सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड का लिखकर हमने मीटर और सेकेंड को यूज करके हमने स्पीड का यूनिट बनाया। सो ये डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आ रहा है ना डिराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट? तो अभी हम आज के टॉपिक में अलग अलग डिराइव यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड उनके यूनिट्स हमें याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में ये पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है एरिया, जो मैंने अभी अभी बताया है, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर वॉल्यूम, ये भी मैंने अभी अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया है। सो तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा, वेरी सिंपल। तो डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम हो गया एरिया। दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ इज आल्सो बेसिकली लेंथ ओनली, है ना। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ब्रेथ भी तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। बस बोलने का एक तरीका है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हालांकि दोनों ही लेंथ ही है ना। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही डिस्टेंस है। लेंथ इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ब्रेथ इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाइट भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर इंटू मीटर, है ना। तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो वही चीज मैंने बताया कि मीटर और मीटर दोनों फंडामेंटल यूनिट है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल गया मुझे एरिया का यूनिट। लेकिन मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मीटर स्क्वायर डिराइव यूनिट है। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट्स होता है, डिस्टेंस के quantities होते हैं। लेंथ इज ऑल्सो डिस्टेंस, ब्रेथ इज ऑल्सो डिस्टेंस, हाइट इज ऑल्सो डिस्टेंस। सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया मीटर क्यूब, एंड मीटर क्यूब इज अ डिराइव्ड यूनिट। सिंपल। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, विच इज अ फंडामेंटल यूनिट, एंड वॉल्यूम का अभी अभी हमने पढ़ा मीटर क्यूब। तो किलोग्राम और 3 बार मीटर, इससे मिल गया हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ हियर यू सी द वे वी हैव रिटन द एब्रिविएशन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी होता है, और पर मीटर क्यूब यानी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ये जो नोटेशन है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैं फिर से बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये कहां से आ गया सर? बेसिक फॉर्मूला से आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ही होता है डेंसिटी। यू मस्ट नो दिस, द डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट इज केजी, किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट इज मीटर क्यूब। तो आ गया हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब मतलब केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, है ना। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसी चीज को, डिवाइड साइन को हटाकर हम कैसे लिखते हैं? जहां पर भी डिवीजन है उसको हम नेगेटिव में उसका पावर लिखते हैं,
याद होगा मैंने अभी अभी बताया था स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मैंने अभी भी क्या बताया था कि मीटर पर सेकंड को ऐसा लिखना तो ठीक है, दिस इज ओके मीटर पर सेकंड, लेकिन मोर यू नो एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग इज कि पर सेकेंड को ऐसे लिखे मीटर और सेकेंड के ऊपर -1। -1 का मतलब है कि नीचे हमने सेकेंड को डिवाइड किया और सेकेंड के पावर पर 1 है। एक्चुअली ये जो मीटर पर सेकेंड है इसके पावर पर 1 है, ये 1 तो हम लिखते नहीं है लेकिन हिडन 1 होता है, हिडन तो 1 होता है। यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर सेकेंड के ऊपर पावर पर 1 है, वी डोंट राइट द वैल्यू 1। तो उसी 1 को जब हम न्यूमरेटर में लिख रहे हैं तो -1 हो जा रहा है। तो ये डिवीजन का साइन को हमने हटा दिया, वी आर राइटिंग द एस इन द न्यूमरेटर और पावर हो गया -1। जो नीचे में जो 1 था वो ऊपर जाके -1 हो गया। सिमिलरली केजी पर मीटर क्यूब को देखो तो नीचे हमारा मीटर पर पावर 3 है, ये मीटर ऊपर जाके -3 पावर हो जाएगा। तो केजी लिख दिया और डिवीजन साइन को हटा दिया, सिर्फ मीटर और पावर में -3 हो गया। जैसे यहाँ का 1 ऊपर जाके -1 हो गया था, उसी तरह यहाँ का 3 ऊपर जाके -3 हो गया, बिल्कुल सेम। तो ये नोटेशन तुम्हें लिखना आना चाहिए कि वो नेगेटिव में पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं, डिनोमिनेटर के यूनिट को। नेक्स्ट कम स्पीड और वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है एंड वी राइट मीटर पर सेकेंड लाइक दिस। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनफैक्ट इन योर सेकेंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, वहां तुम्हें एक्सेलरेशन के ऊपर अलग से टॉपिक है, यू हैव टू स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन इन डिटेल। वहां पर तुम्हें बताया जाएगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। वैसे अभी भी याद करो, वैसे सेकंड चैप्टर में तो पढ़ोगे ही, लेकिन अभी जब यहां पर भी तुम्हें बताया गया है, यू हैव टू नो द यूनिट। एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम है मींस अगेन अ सेकेंड। सो बेसिकली इट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड है तो नीचे एक सेकेंड है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझो, बहुत इजी है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाला सेकेंड को हमने यहां लिख दिया और नीचे एक ऑलरेडी सेकेंड था, वो नीचे वाले सेकेंड, दोनों सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कुछ इस तरह का है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का जो पावर है ऊपर जाके नेगेटिव में हम लिखेंगे मीटर सेकेंड और -2, नीचे जो 2 पावर था ऊपर जाके -2 पावर हो गया, जैसा कि हमने यहाँ किया था, यहाँ किया था, बिल्कुल वैसे। सो एम s to the power -2, this is meter per second square. How will read it? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे रीड करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, इसको मीटर पर सेकेंड, और अभी अभी जो हमने एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, बड़ा सिंपल है। ओके, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन डोंट वरी सर पहली बार देख रहे हैं ये फॉर्मूला, देखो क्लास 9th में आगे ही हमें पढ़ना है, इन आगे जो चैप्टर्स है ना तुम्हारे, क्लास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, वहां पर तुम्हें फोर्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा। फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल मत घबराओ, ये सारे जब तुम्हें एक्सप्लेन किया जाएगा तुम्हें समझ में भी आएगा कि ये कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन फॉर्मूला कुछ ऐसी चीजें होती है ना, तुम्हें याद करना पड़ता है। जैसे तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, याद किया होगा कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह अब तुम्हें कुछ और नए फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे एंड दिस इज द टाइम यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूलाज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लिया तुम लोगों ने, लर्न इट राइट नाउ इटसेल्फ व्हाइल वाचिंग द वीडियो। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो ये यूनिट ऐसे ही चुटकी बजा के कर लोगे। मान लो ये फॉर्मूला ही भूल गए तो फिर कैसे करोगे, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद है तुरंत कर लोगे, अच्छा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम का तो सेकेंड होता है, यानी कुछ इस तरह का है, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, यानी फाइनली मीटर सेकेंड टू द पावर -2 है। तो तुमने आराम से लिख लिया यूनिट। फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। ये सारे नए फॉर्मूलाज है जिसको मैं स्टार कर रहा हूं, स्टार मतलब यू हैव टू लर्न इट, या दीज आर न्यू फॉर्मूलाज, यू हैव नॉट सीन इट अर्लियर इन एनी ऑफ द लोअर क्लासेस। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ा सिंपल है, देखो मास का होता है केजी, मास का यूनिट क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी अभी पढ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही चीज केजी, सेम चीज है, इक्वल टू देके लिख रहा हूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही चीज यहां लिखा हुआ है, राइट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी हैज कम फ्रॉम मास एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज अ बिग एंड कॉम्प्लेक्स यूनिट, है ना, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूनिट है। तो कॉम्प्लेक्स यूनिट को एक रूल निकाला गया, साइंटिस्ट्स ने कॉम्प्लेक्स यूनिट को एक सिंगल नाम से बुलाने का डिसाइड किया कि कितना बड़ा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके पास इतना टाइम है कि इतना बड़ा यूनिट को बोले या लिखे? तो चलो इसको छोटा करके कोई नाम दे देते हैं। तो नाम दे दिया गया है इसका न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल है कैपिटल एन। तो ये काम किया गया इसलिए ताकि कॉम्प्लेक्स यूनिट्स, जिनको बार बार इतने बड़े यूनिट्स को लिखने में हमें दिक्कत होती है, हो सकता है कोई मेजरमेंट, कहीं पर कोई मेजरमेंट हो रहा है, वहां पे बार बार फोर्स का वैल्यू मुझे लिखना है, तो मुझे यूनिट लिखना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना बड़ा एंड कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो क्यों ना इसको एक छोटा सा नाम दे दिया जाए, और वो नाम है न्यूटन। नाउ किस किस आधार पर ये नाम दिया गया? इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु हैज सम कंट्रीब्यूशन इन दैट फील्ड। जैसे न्यूटन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के कॉन्सेप्ट में न्यूटन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए, आइजैक न्यूटन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज आइजैक न्यूटन, उनको सम्मान देने के लिए हमने उनका नाम को ही चूज कर लिया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बुलाएंगे। तो कभी भी कहीं फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इसका मतलब है 10 न्यूटन फोर्स का मतलब 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगा, क्योंकि न्यूटन का मतलब ही होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन जब हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तब हम ऐसे न्यूटन लिखेंगे, NEWTON, जिसमें एन कैपिटल होगा। लेकिन जब हम यूनिट में न्यूटन लिखेंगे तब मुझे एन स्मॉल लिखना है, अगर मुझे वर्ड में लिखना है तो। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं कि 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो मैं लिखूंगा 10 न्यूटन, एन वुड बी स्मॉल। या फिर मैं ऐसे लिखूंगा 10 कैपिटल एन, अगर सिंबल लिख रहा हूं तो कैपिटल एन होगा, अगर सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं तो कैपिटल एन। लेकिन अगर पूरा स्पेलिंग लिखना है मुझे न्यूटन का, एंड न्यूटन एज अ यूनिट ऑफ फोर्स लिखना है, तब मुझे एन कैप स्मॉल लिखना है एंड देन पूरा स्पेलिंग लिखूंगा न्यूटन का। लेकिन अगर मैं नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिख रहा हूं, नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, तब मैं न्यूटन में ऐसे लिखूंगा एन कैपिटल। तो if I say कि 10 न्यूटन ऑफ फोर्स लगा, and if I write like this 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, then this is wrong, क्योंकि here you are using this Newton with n capital and then the whole word as a unit. This is not acceptable. This is not the rule. Rule says as a unit when you are using the word Newton, not as the name of the scientist, but as a unit of force, then you have to write n small and then the whole word. Or else what you can do, if you are just writing the symbol of Newton, which is n, then you have to compulsorily write capital N. And if you are using the word as the name of the scientist, Isaac Newton, the man you are trying to mean, तब वहां पर जो न्यूटन लिखोगे साइंटिस्ट को मीन करने के लिए, तब एन कैपिटल एंड देन EWTON न्यूटन। और ये सिर्फ न्यूटन के लिए लागू नहीं होता, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये वर्क या एनर्जी का जो यूनिट है, पॉइंट नंबर 7 को देखो, वर्क या एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सबका याद रखना है, एकदम भूलना नहीं, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हमने अभी अभी पढ़ा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स, इनटू, अब डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज बेसिकली अ डिस्टेंस ओनली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। तो केजी और ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, और सेकेंड टू द पावर -2 ऑलरेडी था। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ विल यू रीड इट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर whenever there is a माइनस साइन इन द पावर, उसके आगे पर बोल देना, पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा यूनिट को कौन बोलेगा भाई, दांत टूट जाएगा इतना बड़ा यूनिट बार बार बोलने से। छोटा कर देते हैं, लेट अस कॉल इट बाय अ सिंपल वर्ड, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट in whose respect we have simplified this big unit is joule.
जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल. सो जूल इज हिज सरनेम, Joule, जूल. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तब जूल में जे कैपिटल होगा, OULE स्मॉल होगा. लेकिन अगर हम यूनिट के हिसाब से जूल को यूज करेंगे एंड वी आर राइटिंग द होल वर्ड, देन वी विल राइट JOULE जूल विद जे स्मॉल. जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि 20 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन, तो लिखूंगा 20 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन, तो जे स्मॉल. या फिर दूसरा वे है 20 सिर्फ जे लिखो, तो तब जे कैपिटल लिखो. जैसे एन कैपिटल लिखा था सिर्फ सिंबल के समय, उसी तरह जे कैपिटल लिखो. तो समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये है. मोमेंटम नेक्स्ट पे आता है. तुम्हें यूनिट्स याद हो रहे हैं? ओके, मैं फटाफट सब कर दूंगा, लेकिन याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है. फॉर्मूला याद हो रहा है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क या फिर एनर्जी, देखो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट होता है, जूल होता है. वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है. एंड फॉर्मूला दोनों का सेम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ गया? और कैसे ये यूनिट आ रहा है वो समझ में आ रहा है. एंड शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज जूल. मोमेंटम द नेक्स्ट थिंग, ये सारे टॉपिक्स मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क आगे के चैप्टर्स में पढ़ना ही पड़ेगा तुमको. तो फॉर्मूला याद कर लो, अभी तुम्हें इजी होगा. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. याद किया? 10 टाइम्स यू हैव टू स्पीक एंड राइट देम, तब याद हो जाएगा फॉर्मूला. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास का होता है केजी, इनटू वेलोसिटी का यूनिट होता है, अभी पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. तो केजी मीटर पर सेकेंड, देखो है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड. इसी केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? न्यूटन सेकेंड. केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड बोला जाता है. ऑलराइट, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड. ऑलराइट, अब तुम बोलोगे सर कैसे आया ये न्यूटन सेकेंड? क्यों? न्यूटन का मतलब तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन सेकेंड कैसे हो गया? देखो एक बहुत इजी लॉजिक है इसको समझने के लिए. देखो यहां देखो ध्यान से, केजी मीटर पर सेकेंड, यही ना चीज है, इसको हम न्यूटन सेकेंड क्यों बोल रहे हैं, ये प्रश्न तुम्हारे मन में आया होगा. चलो, केजी मीटर पर सेकेंड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड, और हम ऊपर में भी एक सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे में भी एक सेकेंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एनी क्वांटिटी, एनीथिंग, इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद द सेम वैल्यू, कोई तो चेंज होगा नहीं. जैसे मेरे पास 10 है, उसको हम ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और 10 को नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली तो ये कट के 10 ही है ना, तो मेरा वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा. तो मैं वही काम कर रहा हूं, मैंने केजी मीटर पर सेकेंड जो लिया, उसमें मैंने क्या किया, सेकेंड से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड से डिवाइड भी कर दिया. अल्टीमेटली हमने कोई चेंज नहीं किया एक्सप्रेशन में. अच्छा, नाउ यू जस्ट सी दिस थिंग, इस चीज को देखो, ये मिलकर केजी मीटर, ऊपर में सेकेंड टू द पावर -1 है, नीचे एक सेकेंड है, ये दोनों मिलकर सेकेंड टू द पावर -2 हो गया. दिस होल थिंग विच आई हैव सर्कल्ड कैन बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है एक सेकेंड से. अब इसी चीज को तो हम न्यूटन बोलते हैं. यू सी, दिस इज व्हाट न्यूटन इज. तो हम क्या इसको न्यूटन बोल सकते हैं? बिल्कुल. और यहाँ सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड. तो इस तरह से हम केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं, और इनफैक्ट बोलते हैं. राइट, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, बेसिकली ये क्यों किया गया सर? क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट को छोटा करने के लिए हमने इस तरह से किया. राइट. अच्छा, अब आगे के कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं. ये सारे तुम्हारे सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे टॉर्क भी बोलते हैं. फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन. ठीक है, अभी अभी पढ़ा था पीछे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. देखो यहाँ पर तुम बोलोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सर. हाँ होता है, और हमने उसी को तो बोला न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन बोलते हैं. तो फोर्स का न्यूटन, एंड डिस्टेंस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर. तो यहां तक तुम्हें दिख रहा है न्यूटन मीटर है. ठीक है, अगर तुम न्यूटन को ऐसे लिखो, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे अगर लिखो न्यूटन को, फोर्स का यूनिट को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई होकर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, m इंटू एम इज m स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इनफैक्ट दैट इज नथिंग बट मीटर, न्यूटन मीटर, दैट इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, राइट। तो मैं अगर तुमसे पूछूं व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यू विल टेल मी न्यूटन मीटर। तो मुझे ये शॉर्ट शॉर्ट वाला बोल सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स वाला बोलने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला बोल सकते हो, न्यूटन मीटर, राइट। ये भी बोलोगे तो बिल्कुल करेक्ट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला क्यों बोलोगे जब तुम्हारे पास इजी वाला है न्यूटन मीटर, राइट। नेक्स्ट इज पावर, पावर 10th फिजिकल क्वांटिटी, पावर, ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अभी अभी हमने पढ़ा था कि वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड, तो फाइनली ये क्या जूल पर सेकंड है, और जूल पर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, वही चीज यहां दिख रहा है, जूल पर सेकंड, सिंपल। जूल पर सेकंड को भी फर्दर छोटा किया गया, ओके। इनफैक्ट जरूरी नहीं था छोटा करना, क्योंकि जूल पर सेकंड ऐसे ही छोटा सा यूनिट है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स का मन किया कि चलो जूल पर सेकंड को भी और छोटा कर देते हैं, इसको भी किसी एक साइंटिस्ट के नाम से कॉल करते हैं, तो जूल पर सेकंड को कॉल किया गया वॉट, ओके, वॉट, जेम्स वॉट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जेम्स वॉट, उनका सरनेम था WATT वॉट, तो उनका नाम लिया गया, सरनेम को यूज किया गया वॉट। W इज द सिंबल, यूनिट के जैसा जब लिखेंगे तो W स्मॉल होगा, WATT लिखेंगे तो W स्मॉल होगा, या फिर सिर्फ सिंबल लिखेंगे तो W कैपिटल होगा, लेकिन एज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट लिखेंगे तो W कैपिटल होगा, WATT का W कैपिटल होगा when we are writing it as a name of a scientist. All right. Now that watt is nothing but जूल पर सेकेंड, इसी जूल पर सेकेंड को हम वॉट बुलाते हैं, जो कि पावर का यूनिट होता है। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तुम बोलोगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। मेरा क्वेश्चन भी है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तुम आंसर दोगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि पावर का एसआई यूनिट वॉट ही होता है, ओके। एंड वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। नाउ प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का न्यूटन होता है, अभी अभी पढ़ा था, फोर्स इज न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, m⁻²। समझ में आ रहा है ना, -2 मतलब क्या, नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर 2 है वो ऊपर जाके -2 हो रहा है, ऊपर मतलब ये डिवीजन साइन को हमने हटा लिया तो वो ऊपर चला गया ना, मतलब न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में जो पावर 2 था वो न्यूमरेटर में जाके -2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब इसको भी बोला गया कि ऐसे छोटा तो है, छोटा सा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहाँ बड़ा है, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला नहीं भाई इसको और छोटा करेंगे, वी विल फर्दर कॉल इट बाय ए सिंपल नेम, एंड साइंटिस्ट जिनका नाम को लिया गया वो था पैस्कल, पैस्कल। तो पैस्कल वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम, उनका नाम को अगर मीन करेंगे साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से तो P कैपिटल होगा, PASCAL, यूनिट के जैसा लिखेंगे तो PASCAL में P स्मॉल होगा, बट व्हेन वी विल राइट इट एज अ सिंबल, द यूनिट एज अ सिंबल, तो PA ऐसा लिखेंगे जिसमें P कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा, right, so this is the symbol of Pascal, don't write only capital P, Pascal का यूनिट PA लिया गया है, P capital A small, and Pascal is nothing but Newton per meter square, ये तुम्हें सब याद रखना है कि what is joule per second, okay, Pascal is Newton per meter square। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़े हो कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड तो टाइम होता है, बेसिकली इट इज 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, एंड 1/सेकेंड का मतलब ही होता है कि इसको अगर हम पावर नेगेटिव के टर्म्स में लिखें तो ये सेकेंड टू द पावर -1 हो गया पर सेकेंड, तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब 1/सेकेंड, इसको एक सिंपल नाम दिया गया, इसी पर सेकेंड को हर्ज, हर्ज इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, HERTZ, Hertz. This is the name of the scientist. Okay, if we are using it as a unit, we will have to write H small, Hertz. Or what we can do, we can keep the symbol Hertz, H capital, Z small. तो ये यूनिट हो गया,
जो कि पर सेकेंड है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, तुम्हारे क्लास 9th में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, टुवर्ड्स द एंड, अभी नहीं, एकदम लास्ट में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर ये टॉपिक पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला अभी अगर याद कर लो तो और अच्छा है, उस समय तो याद करना ही पड़ेगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा। अभी याद कर लोगे तो और अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। कहां से सर पता, कहां से सर पता चलेगा हमें कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है? देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो कहां पर, प्रीवियस लेक्चर में। लेट मी टेक यू टू फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, याद है तुम्हें? लेट मी टेक इट आउट। हाँ हाँ, देखो इसी स्लाइड में थोड़ा जूम करता हूँ। देखो इधर, इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट एम्पियर होता है, कैपिटल ए इज द सिंबल। तो एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई होप याद है ना तुम्हें? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इज एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर का सिंबल ए, टाइम इज सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम होता है, तब तुम ये एम्पियर सेकेंड कैसे याद रखोगे? बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है तो समय निकालकर विद अ लॉट ऑफ पेशेंस याद करो, याद करो। करंट इज एम्पियर, टाइम इज सेकेंड, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट इनटू टाइम, सो एम्पियर सेकेंड। और इसको भी छोटा किया गया, एम्पियर सेकेंड को क्या किया गया, किस नाम से बुलाया गया? कूलम्ब। सी स्टैंड्स फॉर कूलम्ब। Okay, C is small when you are using it as a unit. This is also the name of a scientist, Coulomb. Okay, Coulomb is the unit of charge. And what is Coulomb? Coulomb is nothing but ampere second. ठीक है? Next, 14th number is electric potential or electromotive force. Now, my dear students, don't make the mistake of considering electromotive force as a force. Yes, let me tell you that electromotive force is not a force. ओके ये एक मिसनॉमर है। सुनने से लग रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो कोई फोर्स होगा, और फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन होता है सर। तो बहुत बच्चे इमीडिएटली ना, अगर मैं उनसे पूछता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, तो वो तुरंत बिना सोचे हुए बोल देंगे न्यूटन, न्यूटन। क्योंकि उनको लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स है, और फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता है सर, अभी अभी आपने बताया फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स न्यूटन होगा। ऐसे बात नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, जस्ट लाइक सी हॉर्स इज नॉट अ हॉर्स, कोलगेट इज नॉट अ गेट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ सिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वहां पढ़ोगे। ओके, डोंट वरी एट ऑल। तो अभी फॉर्मूला याद करना है, बस इतना जानो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का यूनिट अभी अभी पढ़ा जूल, जूल, एंड चार्ज का अभी अभी पढ़ा कूलम्ब, कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब, एकदम सिंपल वे में जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है वोल्ट। वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट। वोल्ट अगर यूनिट की तरह लिखेंगे फुल तो वी स्मॉल होगा, या फिर कैपिटल वी होगा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट, ओके, तो वी कैपिटल होगा। साइंटिस्ट एक नाम, एक साइंटिस्ट है, उनका सरनेम है वोल्ट, उन्हीं के नाम के ऊपर ये रखा गया, जूल पर कूलम को हम वोल्ट बुलाते हैं, राइट? Two more are left. Electrical resistance. It is also known as resistance. Simply resistance बोलते हैं. And the formula is potential divided by current. ये भी तुम current electricity chapter में डिटेल में पढ़ोगे कि resistance होता क्या है. Right now you have to just learn the formula. Electric resistance, potential upon current. So potential अभी अभी पढ़ा ना, potential is V, volt. Current is ampere. तो एकदम simple याद रखना. पोटेंशियल इज वोल्ट, वी पढ़ा अभी अभी, पोटेंशियल करंट इज एम्पियर, तो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर। इसी वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है। ये सिंबल क्या है? ओम, ओ एच एम, ओम।
ओम, ओम को लिखने का ये सिंबल है, ओम, OHM, ओम। ओम इज बेसिकली द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो कैपिटल OHM, ओम लिखेंगे। यूनिट के जैसा लिखेंगे तो स्मॉल OHM लिखेंगे, या फिर सिंबल यूज करेंगे ऐसा, ओम। ये दोनों हो गया यूनिट, आइदर ऑफ द टू यू कैन यूज। एंड O कैपिटल HM इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एंड ये ओम किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू करंट। पोटेंशियल अभी अभी पढ़ा है, वोल्ट, उसका यूनिट वोल्ट होता है, करंट इज एम्पियर। सो वोल्ट एम्पियर इज पावर, वोल्ट एम्पियर। इसी वोल्ट एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म से कहा जाता है वॉट। देखो अभी भी ऊपर में भी पढ़ा था, पावर बोलो चाहे इलेक्ट्रिक पावर बोलो, दोनों सेम होता है। इसलिए ऊपर में भी कहाँ पढ़ा था, देखो इधर पावर, 10th नंबर को देखो, पावर का यूनिट पढ़ा था वॉट। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी अल्टीमेटली वॉट है। तो वॉट ही होता है इलेक्ट्रिक पावर, चाहे इलेक्ट्रिक पावर बोलो चाहे सिंपली पावर बोलो, ऐसा यूनिट इज वॉट। ओके, करंट के टर्म्स में बोलोगे तो इट इज वोल्ट इंटू एम्पियर। अदरवाइज नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, विच इज जूल पर सेकेंड, उसको भी हम वॉट बुलाते हैं। ठीक है, या फिर करंट के टर्म्स में बोलो तो वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी तुम्हारा वॉट ही है, सब सेम ही है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आज जो हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें तुम्हें याद रखना है, अदरवाइज ये वीडियो सिर्फ वीडियो ही बन जाएगा देखने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए अगर बना रहे हो तो तुम्हें मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पर याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आज के लेक्चर में। ओके, सो अभी वीडियो कंप्लीट करने के बाद आई होप दैट यू पीपल हैव नोटेड डाउन द थिंग्स, और हर एक का यूनिट याद रखना है। एग्जाम में अगर तुमसे कोई कोई भी क्वांटिटी का यूनिट पूछा जाए, यू कैन राइट द सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट मींस द फाइनल यूनिट। लाइक पावर का पूछेगा तो सिर्फ वॉट लिखना, प्रेशर का यूनिट पूछेगा तो सिर्फ पैस्कल लिखना। ये पूरा बड़ा सा जो एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, वो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से तो इसको छोटा किया गया। ये कॉम्प्लिकेटेड का यूज हम ना करें, उसको एक छोटा नाम से बुलाए, इसीलिए तो उसको छोटा किया गया। तो तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि तुम यू हैव टू लर्न द कॉम्प्लिकेटेड वन। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, ये तो याद करना ही है। यू हैव टू आल्सो लर्न द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ईच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ये तुम्हारा आज का काम है, इस वीडियो को देखने के बाद ये डेफिनेटली करना। चलो आज हम यहाँ एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, guidelines for writing the units. There are certain rules which we will be following for writing the units. So with this topic, we will continue in the next lecture. God bless you, and click on the bell icon so that you do not miss any of the videos. Take care.